کیا ہوگا اگر زمین کا سب سے بڑا راز ہمارے قدموں کے نیچے ہی دفن ہو اور ہم آج تک اس سے بے خبر ہوں؟ کیا انٹارکٹیکا واقعی محض ایک سنسان برفانی صحرا ہے یا اس کی میلوں موٹی برف کے نیچے ایک ایسی دنیا سانس لے رہی ہے جو ہماری تاریخ، ہماری زمین اور شاید کائنات میں زندگی کے تصور کو ہی بدل کر رکھ دے؟ کیسے ہیں دوستو؟ یہ دنیا کا سب سے غیر آباد اور سفید براعظم انٹارکٹیکا ہے۔ انٹارکٹیکا بلا شبہ زمین کا وہ واحد خطہ ہے جسے سب سے کم سمجھا گیا ہے اور جو آج بھی اسرار کے لبادے میں لپٹا ہوا ہے۔ 21ویں صدی کے جدید دور میں بھی عام انسان اس براعظم کی اصل وسعت اور حیثیت سے ناواقف ہے۔ اس غلط فہمی کی ایک بڑی وجہ ہمارے 2 ڈائمنشن یعنی 2D نقشے ہیں، جہاں انٹارکٹیکا کو محض کاغذ کے نچلے حصے پر ایک ڈرا لائن کی صورت میں دکھایا جاتا ہے۔ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ انٹارکٹیکا رقبے کے لحاظ سے دنیا کا 5واں بڑا براعظم ہے، جو آسٹریلیا اور یورپ سے کہیں زیادہ وسیع اور جنوبی امریکہ کے حجم کے قریب تر ہے۔ اس کی وسعت کا اصل اندازہ تب ہوتا ہے جب ہم اس کا موازنہ جانی پہچانی ریاستوں سے کرتے ہیں۔ اگر اسے چین اور انڈیا کے اوپر رکھا جائے تو یہ ان دونوں ریاستوں سے بڑا نکلے گا۔ اس کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک کا فاصلہ کینیڈا کے برفانی جزائر سے لے کر میکسیکو تک پھیلا ہوا ہے۔ اسی طرح اگر اسے یورپ کے نقشے پر پھیلایا جائے تو یہ شمال میں ناروے اور فن لینڈ سے لے کر مشرق میں ایران، عراق تک اور مغرب میں آئرلینڈ کے پار بحر اقیانوس کے وسط تک محیط ہو جائے گا۔ اتنے وسیع و عریض رقبے کے باوجود یہ پورا براعظم انسانی زندگی کے نشانات سے تقریباً محروم ہے۔ انٹارکٹیکا کی آبادی نہ ہونے کے برابر ہے۔ موسم گرما کے چند مہینوں میں یہاں زیادہ سے زیادہ 4000 افراد پائے جاتے ہیں، لیکن سردیوں کا طویل اور ہولناک سایہ لہراتے ہی یہ تعداد سمٹ کر محض 1000 رہ جاتی ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب سورج مہینوں کے لیے روپوش ہو جاتا ہے، پورا براعظم گھپ اندھیرے میں ڈوب جاتا ہے اور درجہ حرارت -34 ڈگری سے بھی نیچے تک گر جاتا ہے۔ انٹارکٹیکا کی ویرانی کی وجہ صرف اس کا قاتلانہ موسم نہیں بلکہ اس کا انتہائی دور افتادہ ہونا ہے۔ دنیا کے آخری کنارے پر واقع اس براعظم کا قریب ترین انسانی ٹھکانہ ارجنٹائن کا شہر اوشوایا ہے، جو انٹارکٹیکا کے جزیرہ نما سے بھی 1000 کلومیٹر دور ہے۔ مگر اس مختصر فاصلے کے درمیان دنیا کا سب سے خوفناک سمندری راستہ حائل ہے، جسے ڈریک پاسیج کہا جاتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں بحر الکاہل اور جنوبی سمندر کا پانی بپھرے ہوئے انداز میں بحر اوقیانوس سے ٹکراتا ہے۔ کیونکہ جنوبی نصف کرے کے اس حصے میں زمین کا کوئی ٹکڑا موجود نہیں، اس لیے یہاں ہوائیں اور سمندری لہریں بغیر کسی رکاوٹ کے پوری دنیا کا چکر لگاتی ہیں اور ہر لمحے اپنی طاقت اور رفتار میں اضافہ کرتی چلی جاتی ہیں۔ جب شمال کا گرم پانی جنوب کے یخبستہ پانی سے ملتا ہے تو اس سمندری جنکشن پر 20 میٹر سے بلند لہریں پیدا ہوتی ہیں، جو بڑے سے بڑے جہاز کو تنکے کی طرح بہا کر لے جانے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ یہی وہ دشوار گزار راستے اور طوفانی حالات تھے جن کی وجہ سے انسانی آنکھ 1820 عیسوی تک اس عظیم الشان براعظم کا نظارہ نہ کر سکی۔ انٹارکٹیکا کا 98% سے زائد حصہ برف کی ایک ایسی موٹی چادر میں لپٹا ہوا ہے جس نے اصل زمین کو انسانی آنکھوں سے اوجھل رکھا ہے۔ اگر ہم اس برفانی تہہ کی پیمائش کریں تو پورے براعظم پر اس کی اوسط موٹائی 2 کلومیٹر سے زیادہ بنتی ہے، لیکن حیرت کی انتہا وہاں ہوتی ہے جہاں یہ تہہ 5 کلومیٹر تک موٹی ہو جاتی ہے۔ اس کی موٹائی کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ اگر دنیا کی بلند ترین عمارت برج خلیفہ کو 6 بار ایک دوسرے کے اوپر کھڑا کیا جائے تب بھی یہ برف کی تہہ اس سے زیادہ نکلے گی۔ یہ موٹی برفانی تہیں محض جمے ہوئے پانی کا ڈھیر نہیں بلکہ کرہ ارض کے کل میٹھے پانی کا 61% اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں۔ یہ حقیقت جتنی حیران کن ہے اتنی ہی خوفناک بھی، کیونکہ اگر تمام برف پگھل کر مائع ہو جائے تو عالمی سطح سمندر میں تقریباً 60 میٹر کا اضافہ ہو جائے گا۔ یہ تبدیلی اتنی تباہ کن ہوگی کہ امریکہ کی ریاست فلوریڈا سمیت دنیا کے بیشتر ساحلی علاقے نقشے سے ہمیشہ کے لیے مٹ جائیں گے۔ انٹارکٹیکا کی یہ برفانی ڈھال اتنی ناقابل تسخیر ہے کہ ماہرین ارضیات کا ماننا ہے کہ ہم مریخ جیسی دور دراز دنیا کی سطح کے بارے میں تو بہت کچھ جانتے ہیں، لیکن اپنے ہی سیارے پر اس برف کے نیچے چھپی زمین سے آج بھی بڑی حد تک بے خبر ہیں۔ اتنی گہری برف میں سوراخ کرنا ایک ناممکن حد تک مشکل کام ہے، اس لیے سائنسدان ایک خاص تکنیک کا سہارا لیتے ہیں جسے ریڈیو ایکٹیو ساؤنڈنگ کہا جاتا ہے۔ اس عمل میں طیاروں کے ذریعے برف کے اندر ریڈیو لہریں بھیجی جاتی ہیں اور ان کے واپس پلٹنے کی رفتار سے نیچے موجود زمین کا نقشہ تیار کیا جاتا ہے۔
लेकिन चूंकि अंटार्कटिका का रकबा यूरोप से भी कहीं बड़ा है, इसलिए पूरे बरआज़म पर तियारे उड़ाकर ये सर्वे करना इंतहाई महंगा, कठिन और तवील तरीन काम है। यही वजह है कि अब तक हमें इस बर्फानी कैद खाने के नीचे मौजूद दुनिया का सिर्फ एक महदूद सा अंदाजा है, और माहिरीन के मुताबिक इस जमीन का 90% हिस्सा अब भी नक्शा साजी से महरूम है और गुमनाम है। ताहम इस पुरअसरार बरआज़म की तहों के नीचे से अब तक जो थोड़ी बहुत मालूमात मिली हैं वो अकल को दंग कर देने वाली हैं। सबसे पहली और अहम बात जो हमें समझनी चाहिए वो ये है कि अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे ऑस्ट्रेलिया की तरह कोई एक इकट्ठा और हमवार खुश्की का टुकड़ा मौजूद नहीं है, जैसा कि ऊपर से नजर आता है। अगर किसी मौजज़े के नतीजे में बरआज़म से तमाम बर्फ पिघल जाए या हटा दी जाए तो इसकी असल और हैरत अंगेज शक्ल हमारे सामने आएगी। बर्फ हटने के बाद हम देखेंगे कि जिसे आज हम अंटार्कटिक पेनिनसुला कहते हैं वो दर हकीकत एक मुकम्मल तौर पर अलहदा पहाड़ी जजीरों का सिलसिला है, जिसे माहिरीन अर्जियात लेसर अंटार्कटिका नाम देते हैं। इसके बरक्स बरआज़म का बकिया बड़ा हिस्सा जो सतह समंदर से ऊपर एक ठोस जमीन की शक्ल में उभरेगा, ग्रेटर अंटार्कटिका कहलाएगा। ये हिस्सा रकबे में तकरीबन ऑस्ट्रेलिया जितना वसी होगा। अंटार्कटिका के इन दो हिस्सों यानी एक जजीरों पर मुश्तमिल और दूसरा बरआज़मी के दरमियान ये फर्क महज शक्ल का नहीं बल्कि इनकी तारीख और अर्जियाती बनावट भी एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। ग्रेटर अंटार्कटिका जमीन की कदीम तरीन इग्नियस और मेटामॉर्फिक चट्टानों से बना हुआ है जो इसकी कदामत और मजबूती की अलामत है, जबकि लेसर अंटार्कटिका रकबे में छोटा और ज्यादातर तलछटी और आतिशफिशानी चट्टानों पर मुश्तमिल है जो इसके जुग्राफियाई तौर पर नौजवान होने की अलामत है। दिलचस्प बात यह है कि लेसर अंटार्कटिका का बराह रास्त ताल्लुक बहरुल काहल की उस मशहूर रिंग ऑफ फायर से है जो जल्जलों की फाल्ट लाइनों और सरगर्म आतिशफिशानों पर मुश्तमिल एक तवील पट्टी है। ये पट्टी गुज़श्ता 35 मिलियन सालों से वजूद रखती है, जिसका नतीजा ये है कि इस खित्ते की ज्यादातर जज़ायर अपनी फितरत में आतिशफिशानी है। बज़ाहिर इन पर बर्फ की मोटी तहें और ग्लेशियर्स जमे हुए हैं, लेकिन इनके सीने में आज भी तपिश बाकी है। अंटार्कटिका के मशरकी जानिब माउंट एरेबस इस बरआज़म का सबसे बुलंद और दुनिया का जनूबी तरीन सरगर्म आतिशफिशां है। इसकी चोटी पर मौजूद गड्ढे में पिघले हुए लावे की एक मुस्तकिल झील मौजूद है जिसे 1970 की दहाई से मुसलसल देखा जा रहा है। हैरत अंगेज तौर पर इसमें आखिरी बार आतिशफिशानी धमाका महज चंद साल कबल यानी 2020 में हुआ था। जिस मकाम पर यह दहकता हुआ आतिशफिशां वाक़े है वहाँ का औसत सालाना दर्जा हरारत -17 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। सर्दियों के तवील महीनों यानी अप्रैल से सितंबर के दौरान इसका पारा कभी कभी -62 डिग्री सेंटीग्रेड की हौलनाक हद तक गिर जाता है। ये सर्दी इतनी शदीद है कि मिनटों में इंसानी जिस्म को मुकम्मल तौर पर फ्रोस्ट बाइट कर सकता है। यानी अगर आप खौलता हुआ पानी फिजा में उछालें तो वो जमीन पर गिरने से पहले ही बर्फ के बारीक ज़रात में तब्दील हो जाएगा। ये एक ऐसा सफाक माहौल है जहाँ जिंदगी के आसार मिलना तकरीबन नामुमकिन मालूम होते हैं। लेकिन हैरत का असल सफर तो माउंट एरेबस की सतह के नीचे से शुरू होता है, जहाँ एक ऐसी दुनिया आबाद है जिसे इंसानी अकल ने अभी समझना शुरू किया है। सदियों से आतिशफिशां से निकलने वाली गर्म भाप ने बर्फ के अंदर ही अंदर सुरंगों और गारों का एक वसी जाल बुन दिया है। इन ज़ेरे ज़मीन आतिशफिशानी गारों के अंदर का दर्जा हरारत महज 25 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। ये दर्जा हरारत इतना मुतदिल और खुशगवार है कि अंटार्कटिका की हड्डी कपकपा देने वाली सर्दी के बीचों बीच आप यहाँ महज एक टी शर्ट पहनकर आराम से बैठ सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अंटार्कटिका के इन पोशीदा गारों में जिंदगी के वो तमाम सूरतें पनप सकती हैं जिनसे हम अब तक मुकम्मल तौर पर नावाकिफ हैं। 2017 में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया की एक टीम ने माउंट एरेबस के नीचे इन गारों से मिट्टी के नमूने हासिल किए। इस मिट्टी में काई और एल्गी के साथ साथ छोटे जानदारों के डीएनए के आसार भी पाए गए, जो इस बात की तस्दीक करते हैं कि इन ज़ेरे ज़मीन नखलिस्तानों में जिंदगी की चहल पहल मौजूद है। सबसे दिलचस्प इंकशाफ ये था कि डीएनए के कुछ नमूने तो जानी पहचानी अक़साम से मिलते जुलते थे, लेकिन बहुत से ऐसे थे जिनका ताल्लुक जमीन पर मौजूद किसी मालूम अनवा से नहीं जोड़ा जा सकता था। इनका करीबी ताल्लुक झींगों, मकड़ियों और खटमलों की नस्ल से मालूम होता था। इससे ये कभी इम्कान पैदा होता है कि माउंट एरेबस के इन गर्म गारों में ऐसी मखलूकात बसती हैं जो आज तक इंसानी नजरों से ओझल रही हैं। माउंट एरेबस अकेला नहीं है। अंटार्कटिका में कम से कम ऐसे 15 मजीद सरगर्म आतिशफिशां मौजूद हैं जिनके नीचे इसी तरह की गर्म सुरंगें और गार हो सकते हैं। गोया बर्फ की मीलों मोटी तह के नीचे ऐसे दर्जनों नखलिस्तान मौजूद हैं जिनके बारे में हम कुछ नहीं जानते। रेडियो एको साउंडिंग के जरिए हासिल होने वाले डाटा ने इंकशाफ किया है कि बर्फ के नीचे सिर्फ गार ही नहीं
बल्कि एक मुकम्मल जोग्राफियाई दुनिया मौजूद है। वहाँ लहराती वादियाँ और कदीम दरियाओं के खुश्क रास्ते और बुलंद बाला पहाड़ियाँ हैं। बिल्कुल वैसा ही मंजर जैसा हमें जमीन के दीगर हिस्सों में नजर आता है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि ये पूरा मंजरनामा वक्त के बेरहम हाथों से जम चुका है और मीलों मोटी बर्फ के नीचे कैद है। इसी पुरअसरार जोग्राफिया की एक सबसे हैरत अंगेज खसूसियत हाल ही में सन 2019 में दरियाफ्त हुई। अंटार्कटिका की बर्फ ने अपने सीने पर मौजूद राज छुपा रखे हैं। उनमें से एक जमीन की सतह पर मौजूद सबसे गहरी वादी है। ये वादी इतनी वसी और हैबतनाक है कि अगर इसके ऊपर से बर्फ हटा दी जाए तो अमेरिका की मशहूर ग्रैंड कैनन भी इसके सामने मामूली दिखाई दे। ग्रेटर अंटार्कटिका के इलाके में डैन मैन ग्लेशियर के नीचे वाक़ई ये वादी सतह समंदर से 3.5 किलोमीटर गहरी है। इसकी गहराई का अंदाजा इस बात से लगाइए कि यह बहरा अकियानूस की औसत गहराई के बराबर और माउंट एवरेस्ट की बुलंदी से तकरीबन आधी है। इसका अंदाजा यूं लगाइए कि जमीन पर सबसे गहरा तरीन मकाम डेड सी का साहिल है जो महज 413 मीटर गहरा है, जबकि अंटार्कटिका की ये गुमनाम वादी इससे 8.5 गुना ज्यादा गहरी है। लाखों सालों से बर्फ तले दबी इस वादी का इंकशाफ दुनिया पर पहली बार सन 2019 में हुआ, जो इंसानी तस्वर से भी कहीं ज्यादा पुरहैबत है। जमीन की गहरी तरीन वादी तो महज एक शुरुआत है, आगे और राज खुलेंगे। 1958 में सोवियत यूनियन के मुहक्किकीन ने बर्फ की तहों के नीचे एक पूरे पहाड़ी सिलसिले की मौजूदगी का पता लगाकर दुनिया को हैरान कर दिया। इसे गैम्बर्ट सेफ पहाड़ी सिलसिले का नाम दिया गया। ये पहाड़ अपनी बुलंदी और तवालत में जनूबी यूरोप के मशहूर अल्पस के बराबर हैं। तकरीबन 1200 किलोमीटर पर फैले इस पहाड़ी सिलसिले में 2700 मीटर बुलंद पहाड़ मौजूद हैं, मगर ये इंसानी आंख से मुकम्मल तौर पर ओझल हैं क्योंकि इन पर 600 मीटर मोटी बर्फानी चादर तनी हुई है। सबसे पुरअसरार इंकशाफ मशरकी अंटार्कटिका में हुआ, जहां 1950 की दहाई में साइंसदानों को ग्रेविटी अनोमली का सामना करना पड़ा। 243 किलोमीटर चौड़े इस इलाके में ग्रेविटी मामूल से काफी हद तक कमजोर थी। कई दहाइयों के तजस्सुस के बाद 2006 में नासा और जर्मन सैटेलाइट्स के डेटा की मदद से यह नजरिया सामने आया कि यहाँ बर्फ के नीचे 480 मीटर चौड़ा एक कदीम शहाबी गढ़ा है। अगर ये नजरिया दुरुस्त साबित हुआ तो जमीन पर दरियाफ्त होने वाला अब तक का सबसे बड़ा शहाबी गढ़ा ये होगा। ये मेक्सिको के उस मशहूर गढ़े से भी 3 गुना बड़ा है, जिसके बारे में माना जाता है कि वहाँ टकराने वाले सियारचे ने डायनासोर की नस्ल खत्म कर दी थी। तस्वर कीजिए कि डायनासोर को खत्म करने वाला सियारा 10 किलोमीटर चौड़ा था, लेकिन अंटार्कटिका में इतना बड़ा गड्ढा बनाने के लिए आने वाला सियारचा 40 से 50 किलोमीटर चौड़ा रहा होगा, यानी इतना बड़ा कि वो पूरे कराची शहर को अपनी लपेट में ले ले। अगरचे मीलों मोटी बर्फ की वजह से अभी तक वहां से नमूने हासिल नहीं किए जा सके, लेकिन कशिश शकल के अदाद शुमार इस हौलनाक खलाई तसादुम की गवाही दे रहे हैं। जमीन की सतह पर होने वाला कटाव वक्त के साथ साथ कदीम हादसात के निशानात को मिटा कर रख देता है। यही वजह है कि ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी के मुहक्किकीन, जिन्होंने अंटार्कटिका की बर्फ के तले दबे हुए इस देवहैकल गड्ढे की निशानदेही की, उसे तकरीबन 50 करोड़ साल पुराना करार देते हैं। उनका ख्याल है कि यह गड्ढा उस वक्त बना जब कदीम गोंडवाना बरआज़म टूट रहा था और ऑस्ट्रेलिया और हिंदुस्तान अंटार्कटिका से जुदा हो रहे थे। ये दौरानिया इसलिए भी अहम है कि ये जमीन की तारीख के हौलनाक तरीन वाक़े पर्मियन ट्रियासिक एक्सटेंशन से मुताबिकत रखता है, जिसे साइंसदान द ग्रेट डाइंग का नाम देते हैं। तकरीबन 25 करोड़ साल पहले पेश आने वाले इस साने में 57% हयातियाती खानदानों, 81% समंदरी मखलूक और 70% जमीनी जानवरों के नामो निशान मिटा दिया था। आज तक साइंसदान इसकी हतमी वजह बताने से कासिर हैं, लेकिन ये मुमकिन है कि अंटार्कटिका की ये मीलों मोटी बर्फ अपने सीने में इस अजीम मौत यानी ग्रेट डाइंग का असल सबब छुपाए हुए हो। अगर यह साबित हो गया कि यहाँ टकराने वाला सियारचा इतना बड़ा था, तो आयन मुमकिन है कि इसके खौफनाक तसादुम से जमीन की ऊपरी सतह यानी क्रस्ट को इतना कमजोर कर दिया गया हो कि कदीम बरआज़म गोंडवाना के टुकड़े हो गए और दुनिया का नक्शा ही बदल दिया गया। अंटार्कटिका की इस बर्फानी चादर के नीचे सिर्फ चट्टाने नहीं बल्कि तकरीबन 675 माइल झीलें भी दरियाफ्त हुई हैं, जिनका इल्म हमें महज पिछली 3 दहाइयों में हुआ। इनमें से सबसे बड़ी पुरअसरार झील वोस्टोक लेक है, जिसे रूसी मुहक्किकीन ने 1990 की दहाई में दरियाफ्त किया। ये झील बर्फ के सतह से 4 किलोमीटर नीचे वाक़ है और हजम के लिहाज से दुनिया की 6ठी बड़ी
बड़ी झील है। हैरत की बात यह है कि इसमें अमेरिका की मशहूर झील मिशिगन से भी ज्यादा पानी मौजूद है, मगर इंसानियत 1996 तक इसके वजूद से मुकम्मल बेखबर थी। वोस्टोक लेक का पानी -3 सेंटीग्रेड पर होने के बावजूद मय शक्ल में मौजूद है। इसकी दो वजूहात हैं, एक तो जमीन के अंदरूनी हिस्से से आने वाली तपिश और दूसरा इसके ऊपर मौजूद 4 किलोमीटर मोटी बर्फ का बेपनाह दबाव है जो पानी को जमने नहीं देता। अगरचे ये दर्जा हरारत आम मखलूकात के लिए जानलेवा है, मगर मछलियों और समंदरी सितारों की कई ऐसी अकसाम हैं जो इतनी सर्दी में जिंदा रहने की सलाहियत रखती हैं। झील वोस्टोक का मामला इसलिए सबसे ज्यादा दिलचस्प है क्योंकि ये गुज़श्ता 15 मिलियन सालों से बाकी बैरूनी दुनिया से मुकम्मल तौर पर कटी हुई है। इसका मतलब है कि अगर इस झील की गहराइयों में कोई जिंदगी मौजूद हो तो वो करोड़ों सालों से दुनिया के दीगर हिस्सों से अलग थलग अपने मखसूस अंदाज में इर्तिका पजीर हो रही है। ये तस्वुर ही इतना हैबतनाक है कि हमसे महज चंद किलोमीटर नीचे एक ऐसी दुनिया हो सकती है जिसका इर्तिका लाखों साल से हमसे अलग हो रहा है। 2012 में रूसी मुहक्किकीन की एक टीम ने तारीख रकम की जब उन्होंने अंटार्कटिका की 4 किलोमीटर मोटी बर्फानी तह को चीरते हुए झील वोस्टोक की माय सतह तक रसाई हासिल की। ये तारीख में पहली बार था कि इस कदीम झील के पानी का नमूना सतह पर लाया गया। ताहम इस मुहिम को आलमी सतह पर कड़ी तनकीद का निशाना बनाया गया क्योंकि माहिरीन का ख्याल था कि ड्रिलिंग के आलात जरासीम से पाक नहीं थे। बादअज़ां तजज़ियों ने इस खदशे की भी तस्दीक कर दी। नमूनों में मिट्टी के तेल और बैरूनी दुनिया के 255 अक़साम के बैक्टीरिया पाए गए जो ड्रिल बट के साथ झील के अंदर दाखिल हुए थे, लेकिन इस आलूदगी के बावजूद एक ऐसी दरियाफ्त हुई जिसने सनसनी फैला दी। इन तमाम नमूनों में बैक्टीरिया की एक ही किस्म मिली जो दुनिया के किसी भी मालूम डेटाबेस में मौजूद नहीं थी। ये इस बात का पहला ठोस सबूत था कि वहाँ नीचे जिंदगी की ऐसी सूरतें मौजूद हो सकती हैं जिनसे हम ताहाल नावाकिफ हैं। अगरचे 2015 में एक और साफ सुथरी ड्रिलिंग के जरिए नया नमूना हासिल किया गया, मगर इसके नतायज आज तक सीगे राज में हैं, जिसने इस मामले को मजीद पेचीदा कर दिया है। साइंसदानों का मानना है कि अगर झील वोस्टोक की इतनी गहराई और दबाव में जिंदगी मौजूद है तो ये महज बैक्टीरिया जैसी सादा शक्लों तक महदूद नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि निज़ाम शमसी के दीगर अजराम जैसे मुश्तरी के चांद, रोपा और जोहल के चांद, एनसिलाडस पर मौजूद मीलों गहरी बर्फ के नीचे छुपे समंदरों में भी जिंदगी इसी तरह सांस ले रही हो सकती है। अंटार्कटिका की इंसानी दरियाफ्त की दास्तान भी किसी तिलस्माती कहानी से कम नहीं। कदीम यूनानियों ने महज फलसफियाना बुनियादों पर एक जनूबी बरआज़म टेरा ऑस्ट्रालिस का कियास किया था, मगर इसकी तस्दीक में सदियां बीत गईं। यूरोपीय मुहिम जोन के बड़े बड़े जहाज जब भी अंटार्कटिका सर्कल को अबूर करने की कोशिश करते, कुदरती निज़ाम की सख्ती उन्हें पीछे धकेल देती थी। बिल आखिर 1820 वो तारीखी साल साबित हुआ जब रूसी मुहिमजो थेडिस बिलिंगशॉसन और मिखाइल लाज़ारेफ ने पहली बार इस बरआज़म के बर्फानी किनारों का नज़ारा किया। ये इंसानी आग का अंटार्कटिका के अजीम इसरार से पहला बाकायदा सामना था। अंटार्कटिका के बारे में हमारा ये तस्वर कि ये महज एक बेजान बर्फानी टुकड़ा है, पिछली चंद दहाइयों की तहकीक ने गलत साबित कर दिया है। 1950 की दहाई में जब बैनुल-अक़वामी जियोफिजिकल ईयर के दौरान मरबूत साइंसी कोशिशें शुरू हुई तो इंकशाफ हुआ कि इस सफ़ेद चादर के नीचे एक पूरा बरआज़म दफन है। अमेरिका के ब्रेड स्टेशन से किए गए इब्तदाई सर्वे ने साबित किया कि यहाँ की बर्फ हमारी तवक्कुआत से कहीं ज्यादा मोटी है और इसके नीचे पहाड़, वादियाँ और दरिया एक खामोश जिंदगी गुजार रहे हैं। आज हम जानते हैं कि अंटार्कटिका सिर्फ बर्फ का ढेर नहीं बल्कि अर्जियाती तब्दीलियों और जिंदगी के मुमकिन इर्तिका का एक ऐसा गहवारा है जो आने वाले वक्तों में कायनात के कई बड़े राजों से पर्दा उठा सकता है। 1970 की दहाई में सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के आगाज ने अंटार्कटिका को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया। लैंडसैट सैटेलाइट ने पहली बार इस बरआज़म की ऐसी तफसीली तस्वीर फराहम की जिनसे बर्फानी तहों की हरकत और उनके पिघलने के अमल को समझना मुमकिन हुआ। इसी दौर में बरतानवी माहिरीन ने रेडियो एको साउंडिंग की तकनीक को इस हद तक बेहतर बना लिया कि त्यारों से भेजी गई रेडियो लहरें बर्फ को चीरती हुई नीचे मौजूद जमीन का खाका तैयार करने लगी। यूं इंसानियत को पहली बार बर्फ तले दबी वसी वादियों, बुलंद पहाड़ों और मख्फी झीलों का इब्तदाई नक्शा मौसूल हुआ। 90 की दहाई के अवाइल में एक ऐसी दरियाफ्त हुई जिसने साइंसी दुनिया में हंगामा बर्पा कर दिया। यूरोपीय खलाई एजेंसी के एरेस-1 सैटेलाइट ने बर्फ के नीचे एक अजीम-उल-शान झील के आसार दिखाए जिसे बाद में झील वोस्टोक का नाम दिया गया। रूस के वोस्टोक स्टेशन के नीचे 4 किलोमीटर गहराई में दफन ये झील मीठे पानी का वो जखीरा है जो लाखों सालों से बाकी दुनिया से मुकम्मल कटा हुआ है। यहाँ का दर्जा हरारत -3 सेंटीग्रेड होने के बावजूद ऊपर की बर्फ के दबाव और नीचे की जमीन के अंदरूनी हरारत ने इसे माय हालत में बरकरार रखा है। ये एक ऐसा अनोखा माहौल है जो पूरी जमीन पर कहीं और नहीं पाया जाता। 2000 दहाई के आगाज में
नासा के ग्रेस मिशन ने कशिश शकल के डेटा के जरिए एक और सनसनीखेज इंकशाफ किया। मशरकी अंटार्कटिका के एक वसी इलाके में कशिश शकल मामूल से कमजोर पाई गई, जो एक 2 हेकल शहाबी गड्ढे की मौजूदगी का पता देती थी। ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी के मुहक्किकीन के मुताबिक ये गड्ढा 480 किलोमीटर चौड़ा है, जो इसे दुनिया का सबसे बड़ा शहाबी गड्ढा बनाता है। ये कियास किया जाता है कि करोड़ों साल पहले एक ऐसा सियारचा यहाँ टकराया था जो डायनासोर को खत्म करने वाले सियारचे से भी कई गुना बड़ा था। इस खौफनाक तसादुम ने न सिर्फ जमीन की ऊपरी सतह को कमजोर करके कदीम बरआज़म गोंदवाना के टुकड़े किए, बल्कि 250 मिलियन साल पहले पेश आने वाले द ग्रेट डाइंग का सबब भी मुमकिन तौर पर यही हो सकता है, जिसने जमीन से ज्यादातर जिंदगी का सफाया कर दिया था। 2010 की दहाई में जदीद रडार टेक्नोलॉजी ने अंटार्कटिका के मजीद पोशीदा गोशे बेनकाब किए। बेड मैप प्रोजेक्ट के जरिए बर्फ के नीचे की जमीन का 3D नक्शा तैयार किया गया, जिससे पता चला कि यहाँ सिर्फ बर्फ ही नहीं बल्कि सरगर्म आतिशफशां और गहरी खाइयां भी मौजूद हैं। इसी दौरान 2019 में डैनमैन ग्लेशियर के नीचे दुनिया की गहरी तरीन वादी दरियाफ्त हुई, जो सतह समंदर से 3.5 किलोमीटर नीचे तक जाती है। यह गहराई बहरा ओकेयानूस की औसत गहराई से भी ज्यादा है। अंटार्कटिका की ये गहराइयाँ सिर्फ जुग्राफियाई तौर पर ही अहम नहीं, बल्कि यहाँ एक मुकम्मल माहौलियाती निज़ाम सांस ले रहा हो सकता है। माउंट एरेबस जैसे आतिशफशानों की गर्म भाप ने बर्फ के अंदर गारों का एक ऐसा जाल बुन दिया है जहाँ दर्जा हरारत 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। 2017 में इन गारों की मिट्टी से मिलने वाले काई, एल्गी और छोटे जानदारों के DNA ने साइंसदानों को हैरतज़दा कर दिया। इनमें से कुछ DNA नमूने जमीन पर मौजूद किसी भी मालूम नौ से मेल नहीं खाते, जो इस बात का इशारा है कि अंटार्कटिका की बर्फानी तारीकी में जिंदगी की ऐसी अनोखी शक्लें मौजूद हैं जो लाखों सालों से तन्हाई में इर्तिका पा रही हैं। अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे छुपी झीलें किसी कदीम तलस्माती दुनिया की तरह जिंदगी की मेजबानी कर सकती हैं। अब तक ऐसी 675 से ज्यादा झीलें दरियाफ्त हो चुकी हैं, जिनमें से बेशतर 1 किलोमीटर लंबी बर्फानी तहों के नीचे दबी हुई हैं और लाखों सालों से बाकी दुनिया से मुकम्मल तौर पर मुनक़ता हैं। झील वोस्टोक इनमें से सबसे बड़ी और मशहूर है, लेकिन इसके अलावा भी कई ऐसी झीलें हैं जहां जिंदगी के कई इम्कानात मौजूद हो सकते हैं। अगरचे 2012 में झील वोस्टोक से लिए गए नमूने आलूदगी का शिकार हुए, मगर इनमें पाया जाने वाला एक मुनफरिद बैक्टीरिया जो दुनिया के किसी मारूफ डेटाबेस में से ममासलत नहीं रखता, इस बात की नवीद देता है कि वहाँ की गहराइयों में कोई अनोखी मखलूक सांस ले रही है। अगर ये सच है तो इसके असरात निज़ाम शमसी के दीगर सियारों जैसे मुश्तरी और ज़ोहल के बर्फानी चांदों पर जिंदगी की तलाश के लिए इंतहाई अहम साबित होंगे। अंटार्कटिका की बर्फ सिर्फ जिंदगी ही नहीं बल्कि हमारे सियारे की तारीख के ग्रां कदर रिकॉर्ड भी छुपाए हुए हैं। यहाँ से निकाले गए बर्फ के नमूने, जिन्हें आइस कोर कहा जाता है, लाखों साल पुरानी मौसमी तब्दीलियों की दस्तावेजात हैं। रूस के वोस्टोक स्टेशन से हासिल करदा इन नमूनों ने हमें बताया कि गुज़श्ता 4 लाख सालों में जमीन की फिजा में कार्बन डाइऑक्साइड की सतह किस तरह बदली और दर्जा हरारत के उतार चढ़ाव से इसका क्या ताल्लुक रहा है। ये डाटा मौसमियाती तब्दीलियों को समझने के लिए एक नागुज़ीर ज़ख़ीरा है, मगर आज ये अनमोल किताब खतरे में है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अंटार्कटिका की बर्फ तेजी से पिघल रही है और अजीम ग्लेशियर्स समंदरों की तरफ सरक रहे हैं। अगर ये सिलसिला यूं ही जारी रहा तो आने वाली सदियों में सतह समंदर में इस कदर इजाफा हो सकता है कि दुनिया के बड़े साहिली शहर सफ़ह हस्ती से मिट जाएंगे। ताहम इस पिघलाव के नतीजे में शायद अंटार्कटिका की वो वादियाँ और राज भी दुनिया के सामने आ जाएं जो लाखों सालों से बर्फ के कैद खाने में बंद हैं। अंटार्कटिका सिर्फ साइंस का मरकज ही नहीं बल्कि सियासी खींचातानी का मैदान भी रहा है। अर्जेंटाइन और चिली ने इस बरआज़म पर अपने दावों को मजबूत करने के लिए एक अजीबोगरीब रास्ता अख्तियार किया। उन्होंने हामला खवातीन को अंटार्कटिका की बस्तियों में भेजना शुरू किया ताकि वहां पैदा होने वाले बच्चे इस सरजमीन के शहरी कहलाएं और उनकी खुदमुख्तारी का दावा ठोस हो सके। इस मुहिम के नतीजे में 7 जनवरी 1978 में एमिलियो मार्कुस पाल्मा अंटार्कटिका की जमीन पर पैदा होने वाले पहले इंसान बने। इसके बाद से अब तक अर्जेंटाइन और चिली के कमोबेश 10 बच्चे वहां पैदा हो चुके हैं। इन बस्तियों में अब स्कूल भी कायम हैं जहां ये बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। इस इलाकाई कशीदगी के साथ साथ अर्जेंटाइन और बरतानिया के दरमियान जज़ायर फाल्कलैंड पर बरसों से तल्ख तनाज़ा जारी है। अगरचे अंटार्कटिका के बरअक्स यहाँ हज़ारों लोग आबाद हैं, मगर अर्जेंटाइन तारीखी और जुग्राफियाई बुनियादों पर बरतानिया के कंट्रोल को चैलेंज करता आया है। बरतानिया 1830 की दहाई से इन जज़ायर पर काबिज है, जहाँ आज तकरीबन 3600 बरतानवी शहरी आबाद हैं। जज़ायर फाल्कलैंड पर बरतानिया और अर्जेंटाइन का तनाज़ा 1982 में उस वक्त अपने अरूज पर
پہنچا جب ارجنٹائن نے ان جزائر پر اچانک فوجی حملہ کر دیا۔ اس کے نتیجے میں 10 ہفتوں پر محیط ایک خونی جنگ چھڑ گئی جس میں دونوں جانب سے لگ بھگ 1000 فوجی ہلاک اور 2000 سے زائد زخمی ہوئے۔ اگرچہ برطانوی افواج نے ارجنٹائن کو شکست دے کر ان جزائر پر اپنا قبضہ برقرار رکھا، لیکن یہ تنازع آج بھی دونوں ممالک کے درمیان ایک سلگتا ہوا مسئلہ ہے جو یوکرین اور مشرق وسطیٰ کی جنگوں کے شور میں کہیں دب کر رہ گیا ہے۔ لیکن اب اس تنازع کے دوبارہ بھڑکنے کی ایک ایسی وجہ سامنے آئی ہے جو دنیا کی معیشت کا رخ بدل سکتی ہے۔ روس نے انٹارکٹیکا کے ویڈل سی میں 511 ارب بیرل تیل کے ذخائر دریافت کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ خام تیل کی موجودہ قیمتوں کے حساب سے یہ ذخیرہ $44 ٹریلین مالیت کا ہو سکتا ہے، جو امریکہ کی کل جی ڈی پی سے بھی 2 گنا ہے۔ اگر کوئی ملک یا ادارہ عالمی قوانین کو پس پشت ڈال کر اس سیاہ سونے پر قابض ہو جائے تو وہ سعودی عرب کو پیچھے چھوڑتے ہوئے دنیا کی سب سے بڑی تیل کی طاقت بن جائے گا۔ یہ اتنا بڑا خزانہ ہے کہ کوئی بھی ملک اپنی پوری تہذیب کی تقدیر بدلنے کے لیے یہاں جوا کھیل سکتا ہے۔ کاغذات پر تو اس وقت انٹارکٹیکا معاہدہ کسی بھی قسم کی معدنیاتی نکاسی پر پابندی عائد کرتا ہے، لیکن اس معاہدے پر 2048 میں نظر ثانی ہونی ہے۔ یہ تاریخ بہت اہم ہے کیونکہ اس وقت ارجنٹائن، برطانیہ، چلی اور دیگر عالمی طاقتیں خربوں ڈالر کے حصول کے لیے اس معاہدے سے دستبردار ہونے یا اس میں تبدیلی لانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگائیں گی۔ موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے ویڈل سمندر کی برفانی تہیں پتلی ہو رہی ہیں، جس سے مستقبل میں یہاں تیل نکالنے والی مشینوں کی رسائی آسان ہو جائے گی۔ اگرچہ ابھی یہاں کام کرنا انتہائی مہنگا اور دشوار گزار ہے، لیکن جیسے جیسے ٹیکنالوجی بڑھے گی اور برف کم ہوگی، یہ مقام دنیا کا سب سے بڑا معاشی میدان جنگ بن جائے گا۔ برطانیہ کے لیے فالکلینڈ اور جنوبی جارجیا کے جزائر پر کنٹرول محض زمین کا ٹکڑا نہیں بلکہ انٹارکٹیکا کے تیل پر ان کے دعوے کی قانونی بنیاد ہے۔ ارجنٹائن اس حقیقت سے بخوبی واقف ہے۔ اگر وہ کسی طرح ان جزائر سے برطانیہ کو بے دخل کرنے میں کامیاب ہو جائے تو انٹارکٹیکا کے اس عظیم ذخیرے پر برطانیہ کا دعویٰ کمزور جبکہ ارجنٹائن کا دعویٰ ناقابل تسخیر ہو جائے گا۔ یہ ایک ایسا معجزہ ہوگا جو ارجنٹائن کو مستقبل کا سعودی عرب بنا سکتا ہے۔ دوسری جانب برطانیہ بھی اس خطرے سے آگاہ ہے، اس لیے وہ ان جزائر پر اپنا تسلط برقرار رکھنے کے لیے کسی بھی حد تک جائے گا۔ 2048 کے بعد جس کا کنٹرول اس علاقے پر ہوگا وہی دنیا کی اگلی معاشی سپر پاور بننے کی صلاحیت رکھے گا۔ انٹارکٹیکا جو کبھی صرف سائنسدانوں اور مہم جوؤں کی تجربہ گاہ تھا، اب عالمی طاقتوں کی ہوس اور سیاسی مفادات کی زد میں ہے۔ 2048 کی ڈیڈ لائن جیسے جیسے قریب آ رہی ہے، اس سفید براعظم کا مستقبل گہری، غیر یقینی اور ممکنہ تنازعات کی لپیٹ میں نظر آتا ہے۔ زمین کا یہ آخری کنارہ جو اپنی خاموشی اور اصرار کے لیے مشہور تھا، اب دنیا کی تقدیر بدلنے والا ایک بڑے طوفان کا پیش خیمہ بننے والا ہے۔